تو پھر کیا ہرنیک سنگھ کو پتا ہے؟ جب تمہارا بہت اچھا دوست ہے جس کے تمہارے ساتھ بہت اچھے کاروباری مراسم ہیں، یہ انہی دنوں تمہارا دوست بنا تھا نا جن دنوں سندھو گم ہو گیا تھا؟ جسپال نے کہا تو وہ دھیرے سے بولا، کبھی کبھی مجھے بھی شک ہوتا ہے کہ شاید ہرنیک نے ہی ایسا کیا ہو، مگر مجھے ایسا نہیں لگا۔ اسے سندھو سے کلیان نے کہا تو رونیت نے طنز آمیز لہجے میں کہا، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہرنیک کیا ہے اور تم ساتھ رہتے ہو، تمہیں نہیں پتا؟ جسپال یہ ایسے نہیں مانے گا، میں بھیجتی ہوں لڑکے، یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ ابھی بھی وقت ہے، جسپال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے جسپال کے غائب ہو جانے کا پتہ 1 ہفتے بعد لگا تھا، وہ اکثر ایسے غائب ہو جاتا تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہرنیک سنگھ ایک نیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے 2 نمبر دھندے بھی ہیں۔ مجھے ان دنوں کوئی ایسی وجہ نہیں ملی جس سے شک ہی ہو سکے۔ کلیان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تب تک لڑکے اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اس کی پگڑی کو بڑے احتیاط سے اتارا اور ایک طرف رکھ دی، پھر اس کی شرٹ اتاری، دوسرے نے اس کی پینٹ، تو فقط کچھا رہ گیا۔ لڑکوں نے انڈے اٹھائے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکوں نے ڈنڈے اٹھائے اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ چند منٹ بعد ہی اس نے ہاتھ اٹھا دیے، پھر کراہتے ہوئے بولا، رب کے لیے میری بات سنو۔ جسپال کے اشارے پر لڑکے رکے تو اس نے پوچھا، بولو کیا کہتے ہو؟ مجھے ہرنیک پر کئی شک ہیں، ممکن ہے اس نے ہی سندھو کو غائب کیا ہو، لیکن مجھے کیا پتا کہ تم ہرنیک سنگھ کے ہی بندے ہو کہ نہیں۔ اس کے یوں کہنے پر جسپال ایک دم سے ٹھٹک گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے پتا ہے، لیکن وہ اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ لیکن یہ طے تھا کہ معاملہ اس کے اور ہرنیک کے درمیان تھا اور انہی سے پتا چل سکتا تھا۔ چل اتنا بتا دو کہ سندھو زندہ ہے؟ جسپال نے پوچھا۔ اسے زندہ ہونا چاہیے، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، تم ہمارے مہمان رہو اس وقت تک جب تک ہرنیک ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ جسپال نے کہا تو وہ بولا، بہت مشکل ہے، تب تک وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا، دیکھتے ہیں۔ جسپال نے کہا اور لڑکوں کو اشارہ کر کے باہر نکل گیا۔ سورج مغرب کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، چندی گڑھ کی روشنیاں جگمگا اٹھی تھی۔ جسپال اور رونیت موہالی کی طرف جانے والی سڑک پر موجود ایک بڑے بنگلے میں تھے۔ بظاہر وہ ایک فیکٹری سے ملحقہ دفتر تھا جس میں کام کرنے والے لوگ جا چکے تھے اور تھوڑے سے لوگ وہاں تھے۔ وہ دونوں ایک کمرے میں تھے۔ ان کے پاس ابھیجیت سنگھ اور سانولے چہرے والی پتلی سی گرلین کنور تھی۔ وہ چاروں کمپیوٹر کے پاس تھے۔ تبھی رونیت کنور نے جسپال سے کہا، لو ہم یہاں آ گئے، اب بتاؤ۔ میرے سامنے پورا چندی گڑھ ہے، جہاں کی نشاندہی کرو گے میں اسے تلاش کر لوں گی۔ یہاں کوئی 16 سیکٹر ہیں؟ بالکل ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رونیت کنور نے کمپیوٹر کی بورڈ پر انگلیاں چلائیں۔ چند لمحوں بعد اس نے کہا، یہ سامنے سیکٹر 16 ہے۔ تب جسپال نے اسے ہندسوں میں لوکیشن بتائی۔ رونیت اسی کے مطابق کمپیوٹر میں فیڈ کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد رونیت کو سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ سرخ دھبا ہرنیک کی نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ نقشے کے مطابق اس وقت سیکٹر 16 میں ہے، مطلب بقول تمہارے اس کے سیل فون کی لوکیشن ہے۔ مزید دیکھو وہ جگہ کون سی ہے، لڑکے پہنچ جائیں گے وہاں۔ ابھیجیت نے تیزی سے کہا، وہ لڑکوں کے بس کی بات نہیں ہوگا۔ گرلیت کنور نے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں کہا، مگر یہ تو یقین ہو جائے گا کہ وہ وہیں ہے۔ ابھیجیت نے کہا، یہ ٹھیک ہے، مگر کوئی ایکشن نہیں۔ یہ کہہ کر رونیت کنور نے جسپال کی طرف دیکھا اور پوچھا، جسپال یہ پکا ہے نا؟ ایک دم پکا، اس نے کہا۔ تبھی ابھیجیت نے فون نکالا اور کسی کو ہدایات دینے لگا۔ جہاں پر سرخ دبا تھا وہ لوکیشن بتائی۔ وہ فون کر چکا تو رونیت نے گرلین سے کہا، تم رہو ادھر اور ہمیں اپ ڈیٹ کرتے رہنا، ہم نکلتے ہیں، ادھر ادھر کا بھی خیال رکھنا۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔
اس نے اعتماد سے کہا۔ وہ چاروں ایک سیاہ 4 وہیل گاڑی میں سوار ہو کر تیزی سے سیکٹر 16 کی طرف جا رہے تھے۔ ڈرائیور وہی تھا، لیکن گاڑی انہوں نے بدل لی تھی۔ جسپال تیزی سے سوچ رہا تھا۔ جو منظر اس کے سامنے آیا تھا اس نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ اگرچہ شہر جدید طرز پر آباد تھا، لیکن سیکٹر 16 کی آبادی قدرے گنجان لگتی تھی۔ وہاں زیادہ رش تھا۔ ایک ہال میں تقریب جاری تھی۔ لڑکوں نے یہی بتایا تھا کہ ہرنیک سنگھ اندر موجود ہے۔ وہ اس تقریب کا مہمان خصوصی ہے اور سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے۔ کافی ہنگامہ ہو سکتا ہے، جسپال نے دھیمے سے کہا۔ اس کے ساتھ سیکیورٹی بھی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے میں ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ رونیت کنور نے ہولے سے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مجھے بس چند منٹ دیں گے؟ ابھجیت نے اجازت طلب انداز میں پوچھا۔ کیا کرو گے تم؟ جسپال نے پوچھا۔ صرف اتنا کہ یہاں ہنگامہ کر دوں، افراتفری پھیلا دوں۔ اس دوران وہ پہلے ہی کلیان سنگھ کی وجہ سے چکنے ہوں گے، اس طرح وہ زیادہ چکنے ہو جائیں گے، رونیت کنور نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن اس طرح وہ تقریب کے بعد سیکیورٹی کے گھیرے میں یہاں سے نکل جائے گا، اسے پچھلے دروازے سے نکالیں گے، ابھجیت نے کہا۔ ڈن کرو، جسپال نے ایک دم سے کہا۔ اب پیچھے چلو، ابھجیت نے کہا اور کار سے اتر کر لڑکوں سے رابطہ کرنے لگا۔ جسپال اور رونیت اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس عمارت کے پیچھے کی طرف چلے گئے جہاں سنسان سی تنگ گلی تھی جس میں بمشکل ایک چھوٹی گاڑی جا سکتی تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں ہی رہا۔ وہ اس متوقع جگہ جا پہنچے جہاں سے ان کا خیال تھا کہ ہرنیک نکلے گا۔ اس طرف ہال کے اندر کی بہت دھیمی آواز آ رہی تھی، کوئی بڑے زوروں سے تقریر کر رہا تھا۔ اچانک ہال میں دھماکہ ہوا جس سے اندر افراتفری پھیل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گلی کی طرف سے ایک زوردار دروازہ کھلا۔ کرتا پاجامہ اور ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے باریک جسے والے سردار کو کافی سارے لوگ گھیرے میں لے کر نکلے۔ یہی ہے ہرنیک سنگھ، رونیت کنور نے تیزی سے کہا، جس پر جسپال نے پسٹل نکالا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ لوگوں کے اس گھیرے میں گھس گیا جو ہرنیک کے ارد گرد تھے۔ وہ وہاں کے لوگوں کو یہی باور کرانے لگا جیسے وہ اس کا باڈی گارڈ یا سیکیورٹی والا ہے۔ جسپال نے اسے پکڑا اور گلی میں باہر نکلنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ہرنیک کے ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہرنیک ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ سامنے گلی میں سے چند لڑکے تیزی سے اندر آ گئے اور سیکیورٹی والوں اور ان کے درمیان دیوار بن گئی۔ شاید وہ لوگ سمجھ گئے تھے، اس لیے ایک دم سے انہوں نے لڑکوں پر حملہ کر دیا۔ وہ سب ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے۔ گلی میں گھمسان پڑ گیا۔ 2 سیکیورٹی والوں نے جسپال کو دونوں بازو سے پکڑ لیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گلی کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی گونج ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فکری طور پر وہ سب چونکے، لیکن جسپال نے اسی لمحے کا فائدہ لے لیا۔ ان کی توجہ بڑھ چکی تھی۔ اس نے اپنے دونوں طرف کھڑے لوگوں کے پیٹ میں پوری قوت سے کوہنیاں ماری۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ دوہرے ہو گئے ہیں، اس نے وہی اپنے پیروں سے چھلانگ لگائی اور ہرنیک سنگھ کے منہ پر گھونسا مارا اور پھر اس پر جا پڑا۔ وہ دونوں ہی فرش پر تھے۔ تب تک اس نے ہرنیک کی گردن اپنے قابو میں کر لی تھی۔ اسی وقت رونیت کنور اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں سے بھیڑ چکی تھی۔ وہ 4 تھے اور رونیت اکیلی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ اور جو بھی جسپال کی طرف بڑھتا اسے وہ روک لیتی، اس لیے لہو لہان ہو رہی تھی۔ گلی کے باہر فائرنگ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ چاروں طرف یوں دستی بم کے دھماکے ہو رہے تھے جیسے کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ جسپال پوری توجہ سے ہرنیک سنگھ کو قابو کرنے کے لیے اس پر ٹوٹا پڑا تھا۔ اس کے ماتھے اور ناک کے درمیان ایسا زوردار پنچ مارا کہ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گیا۔ رونیت بے حال ہو چکی تھی۔ جسپال اسے بچانے کے لیے بڑھا تو ایک گارڈ نے پسٹل تان لیا۔ جسپال نے ایک دم سے اسے جھکائی دی۔ فائر تو ہوا، لیکن پسٹل اس کے ہاتھ سے جسپال کے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔
बाकी तीनों ने रोनीत को छोड़ दिया और अपनी पिस्टल निकालकर जसपाल पर तान लिए थे। इन्हें देर हो गई थी। जसपाल फौरन ही जमीन पर लेटा और घूमते हुए बगैर किसी तरद्दुद और वक्त जाया किए उन पर फायर कर दिए। रोनीत कंवर का बुरा हाल था। जसपाल ने उसे सहारा दिया तो वो कराहते हुए बोली, बिलाशुबा गली के बाहर हमारे ही लोग होंगे, मुझे छोड़ दो, बाहर देखो कैसा माहौल है। जसपाल किसी बहस के बगैर उसे यूं ही गली में छोड़कर बाहर की जाने बढ़ा। बाहर मुसलसल फायरिंग हो रही थी। 3 लड़के अंदर आने की कोशिश में थे मगर सामने की फायरिंग से रुके हुए थे। जसपाल ने ताक कर इन्हें निशाना बनाया तो रास्ता साफ हो गया। वो फौरन अंदर आ गए। मैं हरनेक को लेकर आता हूँ, मुझे गाड़ी तक कवर देना, जसपाल ने तेजी से कहा और हरनेक को उठाया। वो बहुत भारी था लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो उसे गाड़ी तक ले गया। तभी उसे आवाज सुनाई दी। जसपाल ने देखा उनका ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। उसने हरनेक सिंह को गाड़ी में फेंका। रोनीत कुंवर उसके साथ जा बैठी। लड़कों ने इन्हें कवर दिया। वो वहां से निकलते चले गए। जैसे ही वो रोड पर आए, रोनीत कंवर ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा, मेरा सेलफोन और लैपटॉप किधर है? मैं रास्ता साफ करती हूँ, तुम बहुत एहतियात से निकल चलो और राब्ता करके गुरलीन को अपनी पोजीशन बता दो। ओके, उसने कहा और तेज रफ्तारी से चल दिया। वो उसी इमारत में आन पहुंचे जहां उन्होंने कल्याण सिंह को रखा हुआ था। वो हरनेक को दूसरे कमरे में ले गए थे। तभी एक लड़के ने जसपाल को पैगाम दिया, सर कह रहे हैं कि ज्यादा वक्त नहीं, हाई अलर्ट हो गया है। चंडीगढ़ हमारे लिए चूहेदान साबित हो सकता है अगर एहतियात न की तो। ठीक है, यहाँ 2 लड़कों के अलावा सब चले जाएं, गाड़ी छुपा दो, रोशनी वही जो मामूल के मुताबिक हो। रोनीत को ले जाओ, वो बहुत जख्मी है, जसपाल ने कहा। ओके, लड़के ने कहा और बाहर की तरफ चला गया। एक नीम तारीख कमरे में जसपाल सिंह के सामने गुरलीन कुंवर, अभिजीत सिंह और एक नया लड़का हरपाल सिंह बैठा हुआ था। उसने इन तीनों की तरफ देखा और बोला, हम सब जानते हैं कि ये हमारा पहला मिशन है। पहले हमने इतने बड़े पैमाने पर कुछ नहीं किया। बज़ाहिर यही लगता है कि हरनेक को पकड़ने के बारे में कोई जानता है और उसने हरनेक को बता दिया। इसीलिए सारा प्लान पहले से तैयार था। क्या ख्याल है? माफ करना अभिजीत, ये सब इशारा तुम्हारी तरफ जाता है। इस दुनिया में सब कुछ माफ किया जा सकता है लेकिन गद्दारी नहीं। गोया तुम इसके बारे में कुछ कह सकते हो? हरपाल सिंह ने सर्द लहजे में इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं मानता हूं कि हालात सब मेरे बारे में शक पैदा कर रहे हैं लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मर तो सकता हूं लेकिन गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। तुम लोग मुझे जो भी सजा दो मुझे कबूल होगी, मगर मुझे एक मौका जरूर दिया जाए कि मैं ये साबित कर सकूं मैं गद्दार नहीं हूं। अभिजीत ने पूरे एतमाद से कहा। ठीक है, वक्त नहीं, इसलिए हरनेक और कल्याण के बारे में जो फैसला करना है वो तुम नहीं करना है। सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। कल्याण को लाओ, हरपाल ने कहा। ओके, अभिजीत ने कहा और उठ गया। वो तीनों भी उसके साथ उठ गए। मलज के अंधेरे में हरनेक सिंह फर्श पर पड़ा हुआ था। वो चारों उसके पास चले गए। आहट पाकर वो सीधा हुआ तो जसपाल ने इंतहाई तंजिया लहजे में कहा, नेताजी सुकून से मेरे सवालों का जवाब दोगे या मार खाओगे और मार खाकर बकवास करोगे? तुम नहीं जानते कि तुमने मौत को आवाज दे दी है। सारा चंडीगढ़ मुझे तलाश। लफ्ज उसके मुंह में ही रह गए कि अभिजीत कल्याण के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसने लफ्ज सुन लिए थे, इसलिए उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। फिर सख्त लहजे में बोला, सुन हरनेक, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब चाहिए। झूठ बोलोगे तो मौत, सच बोलोगे तो जाने देंगे। तुम भी जानते हो कि वक्त बहुत कम है। ये कहकर उसने अपना पिस्टल निकाला, सेफ्टी कैच हटाया तो उसके साथ उसकी आवाज से ही हरनेक सहम गया।
बोलो क्या पूछना चाहते हो। वो तेजी से बोला, संदीप अग्रवाल उर्फ सिंधु कहाँ है? अभिजीत ने पूछा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। फिर कल्याण की तरफ देखकर बोला, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, वो तो कल्याण सिंह का दोस्त था और उसी कल्याण ने तुम्हारा पता बताया है। झूठ बोलते हो। ये कहकर पिस्टल उसके माथे पर रख दिया तो चंद लम्हे तजब्जुब में रहा। फिर मुर्दा सी आवाज से बोला, मैंने उसके अगवा की डील की थी, इसीलिए कल्याण के करीब हुआ। मैंने इसे अगवा भी कर लिया था, मगर मुझसे पहले ही किसी ने उसे उठा लिया। मेरा ख्याल है वो राव वालों ने। अब तुम्हें कोई पता नहीं? अभिजीत ने पूछा। नहीं, वो एतमाद से बोला। हमारे बारे में तुझे पहले किसने बता दिया कि तुझे अगवा करने आएंगे? अभिजीत ने पूछा। वो तो कल का बताया जा रहा था कि कोई मुझे अगवा करना चाहता है। वो तो कोई और डील थी, सिंधु वाला मामला ही नहीं था। सिंधु के मामले में तुम्हारी डील किससे हुई थी? जसपाल ने पूछा। गरबाज सिंह नाम है आदमी का, उसे बहुत बड़ी रकम दी थी। सिंधु के गुम हो जाने के बाद से उसके साथ कोई राब्ता नहीं है और ना ही उसने मुझसे रकम वापसी का मुतालबा किया है। हरनेक ने कहा, तुम चंडीगढ़ के सियासतदान हो, क्या समझते हो? हमें बेवकूफ बना लोगे? सिंधु का पता बताओ या गुरबाज सिंह का 10 तक गिनूंगा, अभिजीत ने सर्द लहजे में कहा। तो जसपाल ने भी हरपाल की तरफ देखकर गुरबाज के बारे में पूछा। उस शख्स का नाम इधर कहीं रहा है? मुमकिन है उसने नाम बदलकर ये किसी दूसरी तरह से इनके करीब हुआ हो, लेकिन जो कुछ भी करना है 5-10 मिनट में करके निकल जाओ। पुलिस और खुफिया पूरे शहर में फैल चुकी है, वक्त बहुत कम है। ओके, अभिजीत मार दो इसे गोली, कल्याण को भी खत्म कर दो और चलो। नहीं, रब के लिए नहीं, मैं सच कहता हूँ। वो 5 लड़के मेरे पास हैं, मैं वो दे देता हूँ। वो चीखते हुए बोला। कहाँ हैं वो लड़के? जसपाल ने चौंकते हुए कहा तो वो बोला, वो मेरे फार्म हाउस में हैं, आराम से हैं। जैसे ही हरनेक ने कहा तो जसपाल को गुस्सा आ गया। उसने अभिजीत का पिस्टल हटाया और पूरी कुव्वत से घूंसा उसके मुंह पर मारते हुए कहा, बेगैरत, तूने अब तक मजाक बनाया हुआ है। किस तुम्हें मालूमात देकर क्या करना चाहता है? ये कहकर उसने हरनेक को मारना शुरू कर दिया। उसकी अच्छी ठुकाई करने के बाद जसपाल ने अपनी पंडली से निकाला खंजर और उसकी रान में दबा दिया, फिर चीरते हुए बाहर निकाल लिया। उसके साथ ही हरनेक तड़पने लगा। चंद लम्हे तड़पते हुए घुटी हुई आवाज में बोला, रब के लिए बख्श दो, मैं सब बताता हूँ। 1 मिनट में बता दो, तुम्हें ये आखिरी मौका है, अब गोली तेरे दिमाग के पार होगी। ये कहते हुए अभिजीत ने उसकी कनपटी पर पिस्टल की नाल रख दी। गरबाज का फोन नंबर बता देता हूँ, वो मुझसे 2-4 बार ही मिला है, हमारा राब्ता फोन पर ही था। मुझे कल्याण के जरिए सिंधु की हरकत और सकनात के बारे में पता चल जाता था, जो मैं गरबाज को बता देता था। कल्याण को नहीं मालूम क्या हुआ सिंधु के साथ, इसीलिए ताल्लुक रखा हुआ था कि अगर सिंधु के बारे में या इन 5 लड़कों के बारे में कोई पूछे तो मुझे फौरन पता चल जाए। नंबर बोलो, जसपाल ने कहा तो उसने नंबर बोल दिया। जसपाल ने कॉल मिलाई तो दूसरी जानब से इसकी तवक्का के मुताबिक फोन बंद था। हरनेक के चेहरे का रंग उड़ गया। लगता है तुम अपना संस्कार भी नहीं करवाना चाहते। मैंने तुझे ठोक दिया तो लाश ऊपर फेंकनी है, जहां चील कव्वे तुझे खाएंगे। अरे मैं क्या करूं? मुझे फोन दो, मैं अभी लड़के को जहां कहो पहुंचा देता हूं। उसने अजियत भरे लहजे में तेजी से और बेचारगी से कहा। मैं तेरी बात करवा देता हूं, नंबर बोलो, जसपाल ने कहा तो उसने नंबर बता दिया। जसपाल ने अपने फोन से उस महसूस जगह का फोन किया, नंबर मिलाया। कुछ देर बाद कॉल आ गई तो उसने स्पीकर ऑन करके फोन हरनेक को दे दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? सरदार जी, अब कहाँ हैं आप? ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ। अगर तुम लोग मेरी जिंदगी चाहते हो तो फार्म हाउस से वो 5 लड़के वापस उसी गुरुद्वारे साहब पहुंचा दें। जी, लेकिन ये नंबर तो, दूसरी तरफ से किसी ने कहा तो जसपाल ने इसकी बात काटकर सर्द लहजे में कहा, ओए,
तुम जो कोई भी हो, अगर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो तेरा ये सरदार नेता नहीं रहेगा। सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास, अगर लड़के ना पहुंचाए तो। तुम कोई आसमान पर तो नहीं हो? अगर सरदार जी को कुछ हो गया तो हम तेरे। दूसरी तरफ से कहा गया तो हरनेक बोला, जैसा कह रहे हैं वैसा करो जल्दी। हरनेक ने कहा तो जसपाल ने कहा, साले नंबर से हमें ट्रेस करने की कोशिश में वक्त जाया करने की बजाय अपने काम पर लग जाओ। तेरे सरदार की एक टांग हमने चीर दी है, खून बह रहा है धड़ाधड़। देर करोगे तो समझ लो क्या होगा। क्या ये सच है सरदार जी? तशवीश सदा लहजे में पूछा गया। हाँ सच है, हरनेक ने कहा। नहीं, अभी करता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया तो जसपाल ने फौरन फोन बंद कर दिया। कीड़ा है ना दिमाग में। अब तुम क्या कहते हो कल्याण जी? जसपाल ने इन दोनों की तरफ देखकर पूछा तो कल्याण सिंह बोला, मेरा कसूर तुम्हारे सामने है। तुम गरबाज को जानते हो? अभिजीत ने पूछा। हाँ, मैं उसके साथ कई बार उससे मिला हूँ, लेकिन ये पता नहीं था कि वो क्यों हरनेक से मिलता है। ये आज पता चला। मुझे आप जो कहो मैं करने को तैयार हूँ, उसने कहा तो जसपाल बोला, कल्याण सिंह जी, गुरबाज चाहिए या सिंधु का पता? मेरी फोन पर बात कराओ या मुझे जाने दो। कल शाम तक मैं उसका खोज निकालूंगा, अगर एतमाद करते हो तो, कल्याण ने एतमाद से कहा। तो जसपाल ने हरपाल की तरफ देखा तो अभिजीत बोला, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इससे राब्ते में रहूंगा। कल्याण सिंह को छोड़ दो और जैसे ही लड़के वापस मिलते हैं इस हरनेक को गोली मार दें, हम जा रहे हैं। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर जाने लगे तो हरनेक चीखने लगा, नहीं ऐसे नहीं मारो। जसपाल रुक गया और उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे गरबाज चाहिए, अगर दे सकते हो तो। हाँ मगर, वो बेचारगी से बोला तो अभिजीत ने पिस्टल सीधा किया और उसे डांटते हुए बोला, फिर नई बगैरती करोगे? वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मैंने उनके बारे में बताया तो वो मुझे ही नहीं मेरे सारे परिवार को मार देंगे। यहाँ तो मैं अकेला ही मरूंगा। ये मेरा वादा रहा, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, अगर गरबाज का पता दे दो तो। मैं अभी बात करता हूँ, एक दूसरे नंबर पर बात करवा दो, हरनेक ने कराहते हुए कहा। उसी तरह दोबारा कॉल मिलाएगी। राब्ता हुआ तो हरनेक ने कहा, गरबाज कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। सॉरी। अब वो तुम तक पहुंच गए हैं, अब तुझे मरना ही होगा। दूसरी तरफ से भारी आवाज में कहा गया, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं मुश्किल में हूँ। हरनेक ने कहा, तुमने भारी मुआवजा लिया है इस काम का, अब भुगतो। और हाँ, दोबारा फोन मत करना, तेरे मरने की इतला मुझे हो जाएगी, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। हरनेक यूं हो गया जैसे उसमें जान ही ना रही हो। हरपाल, लड़के मिल जाएं तो इन दोनों को कहीं छोड़ के निकल जाओ, ये जगह अब साफ कर दो। गुरलेन, आओ मेरे साथ। इस हरनेक को छोड़ दिया तो अभिजीत ने कुछ कहना चाहा, ये अब कुछ नहीं कर सकता, और अब कोई जितना भी छुपना चाहे मुझसे नहीं बच पाएगा। आओ, जसपाल ने कहा और वहां से गुरलेन कुंवर को साथ लेकर निकल गया। नया पैराग्राफ। मेरे सामने एक अजीम सहरा था, सूरज चमक रहा था, भूरी सुनहरी रेत तहदे निगाह फैली हुई थी। एक पुरहोल सन्नाटा था जिसमें फकत हवा की दहशतनाक सनसनाहट थी। मैं चलता चला जा रहा था, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ और क्यों चलता जा रहा हूँ। अचानक सहरा में तारीकी छाने लगी, जिसके साथ ही माहौल में वहशत बढ़ने लगी। सूरज स्याह धुएं की ओट में छुप गया था। मैं एक टीले पर चढ़ा तो सामने का मंजर हैरत ज़दा कर देने वाला था। एक दायरे में बेशुमार अजीबो गरीब किस्म के जानवर बैठे हुए थे। उनमें से कुछ जानवर पहचाने जा रहे थे और कुछ अजीबुल हलकत थे। उनमें सबसे आगे एक उल्लू, चमगादड़ और करगस बैठे हुए थे। उनके बिल्कुल सामने की तरफ रीछ, लंगूर और बंदर थे। उन्हीं की दाएं जानब राल टपकाते हुए कुत्ते बैठे हुए थे
اور बाएं जानब लोमड़ी और सांप थे। उनके अलावा काफी सारे जानवर ऐसे भी थे जिन्हें मैं नहीं जानता था और ना ही उन्हें कभी देखा था। ये अजीब मेला लगा हुआ था। वो सारे ही बार बार आसमान की जानब देख रहे थे। शायद उन्हें किसी का इंतजार था। कितना ही वक्त यूं ही गुजर गया। अचानक आसमान की तरफ से एक चमकता हुआ अंडा रेत पर आन गिरा, जो कुछ लम्हे तो पड़ा रहा, फिर हिलने लगा। इस तरह हिलते हुए वो टूट गया। उसके टूटते ही हर जानब सरान फैल गई। सारे जानवर सजदे में गिरकर शोर मचाने लगे। किसी की समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। उस टूटे हुए अंडे से एक गिरगिट ने सर उठाया। चंद लम्हों में उसने न सिर्फ अपने रंग बदले बल्कि उसका चेहरा भी तब्दील होता रहा, यहाँ तक एक भयानक चेहरा वाज़िह हो गया। उसी लम्हे वो सारे जानवर सजदे में से उठ गए। मेरे चेलों, तुम्हें इंसान की बर्बादी मुबारक हो। तुम्हारी दरख्वास्त पर मैंने इजलास बुलाया है। कहो, क्या कहना चाहते हो? उसने अपनी भद्दी और खरखराती हुई आवाज में कहा। तो मैं समझ गया, वो इब्लीस था और उसके इर्द गिर्द सारे उसके चेले थे। तभी एक अजीबुल हलकत जानवर ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेशक इंसान की बर्बादी की वजह आप ही हैं गुरुजी। हम क्या चीज हैं? आज के इस इजलास की दरख्वास्त आपसे इसलिए की गई कि आपका हर चेला बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमत सरंजाम दे रहा है। अब वो ये फैसला चाहते हैं कि उनमें से बड़ा कौन है। इस पर इब्लीस चंद लम्हे खामोशी से सबको देखता रहा, फिर अपनी बद्दी और खराती आवाज में बोला, तुम वो हो जो इंसान को अपने जैसा बना लेते हो। इंसान कितना पागल है, अपनी इंसानियत छोड़कर जानवर बन जाता है। तुम वो सिफ्त ज़्यादा सलाहियत हो, तुम्ही में वो सिफ्त और सलाहियत हो जो किसी इंसान में दाखिल हो जाओ तो वो अपनी इंसानियत को भूल जाता है। मुझे तुम सब पर फख्र है। खैर, इजलास की इब्तिदा करते हैं। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा, फिर उल्लू पर निगाह गाड़ कर बोला, ए उल्लू, मेरे दानिश्वर, तुझे तो शरवान हासिल है। मेरे इस दानिश्वर की शान ये है कि जब इंसान के लिए सूरज गरूब होता है तो इसके लिए तलू होता है, यानी काली रात में इसका दिन तलू होता है। बताए दानिश्वर उल्लू, तो किस हद तक कामयाब है? इस पर उल्लू आगे बढ़ा और हाथ बांध कर बोला, जनाब, ये आप ही की मेहरबानी है कि मुझे शरवान दिया। मेरा ये शरवान ऐसा ही है कि मैं इंसानों के जहन में वसावस पैदा करता हूँ, जिससे उनकी फिक्री पुख्तगी खत्म हो जाती है। इसके साथ ही उनमें खौफ पैदा कर देता हूँ, हर तरह का खौफ, मौत का खौफ, भूख का खौफ, उनके अपने वजूद का खौफ। तुम इसकी कोई मिसाल दे सकते हो? इब्लीस ने चिल्लाते हुए पूछा। बेशुमार हैं। एक छोटी सी मिसाल ये है कि मैंने इंसान में खौफ पैदा कर दिया है कि इस जमीन से पानी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? इस खौफ का पैदा होना ही था कि आपने देखा, इंसान इसलिए बड़े बड़े जुलास बुला रहा है, हालांकि उसे ये नहीं मालूम कि जिसने इंसान को पैदा किया वो पानी खत्म नहीं होने देगा। उसने कह दिया है कि जितना पानी मैंने दे दिया वो कभी खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि खालिक ने हर शय को पानी से जिंदगी बख्शी है। पानी और जिंदगी लाज़िम मलज़ूम है। मैंने ऐसा इब्हाम पैदा किया, कोई समझ ही नहीं रहा। और बड़ी मिसाल, इंसान की जिसमें हकीकी आजादी है, मैंने उसे गुलामी बनाकर मकर फरेब पैदा कर दिया, और जो गुलामी है उसे आजादी बना दिया है। आप देख रहे हैं, मैंने हर जगह आग लगाई हुई है। किसी को समझ में नहीं आने दे रहा कि हकीकी आजादी क्या है। कोई और बात करना चाहते हो? जनाब, मैं नित नए मकरो फरेब गढ़कर फिक्रो फलसफा में इंतशार बढ़ा रहा हूँ। आपने देखा नहीं, औरतों से इमामत तक करवा दी गई, मर्द उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।